Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. If you remember, in last lecture we started with the second chapter, that is the functions of management. In that we first studied the introduction, then we started with the first function, that was the planning. Like in introduction we studied the principle of management are very important in managing organization. The tasks which are taken to achieve organizational goal is called management. Then we studied the definition, like according to L.A. Allen, management is what manager does. This definition focus on the role of manager in the form of different functions. The function of manager start with the planning and ends with controlling. Management function concerned with all levels of management. According to Fuel, to management is to forecast and to plan, to organize, to command and to control. Now next is planning. We came up with our first function, that was planning. So planning is nothing but planning is the process of establishing goals and a suitable course of action for achieving these goals. Then we saw the importance of planning. Importance of planning are helps to set clear objectives, provide path of action. Planning improves performance, minimize the risk. Planning lead to optimum utilization of resources, helps in decision making, useful in setting the standards for controlling, facilitates coordination of all activities, facilitate other management function, promotes innovative ideas. Okay, this was all about the planning and importance of planning. Today we are going to study the next function, that is organizing. What is organizing? Organizing क्या है? हर चीज़ properly organize करने की. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, machine, material, method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. Organizing function is important for execution of the plans which have been prepared by top level management people. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ये एक प्रोसेस है जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं सारे और वी ब्रिंग टुगेदर आवर मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड. वी अरेंज देम and group them properly so that we can achieve our objective. प्लानिंग में क्या देखा आपने? इन प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है what is to be done in future, right? Whereas ऑर्गेनाइजर अपन क्या करते हैं? the way and the mean to achieve what has been planned. प्लानिंग क्या है? अपन अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे करना है. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अपने को डिसाइड करने का the way and mean to achieve what has been planned. This function is important for execution of plan which have been prepared by the top level management. ये फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये फंक्शन ज़रूरी है क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपने लिए प्लान किया है वो अपने को आज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है और वो आज अपने को अचीव करना है. द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल, financial and information resources are established in the process of organizing. Now we will look into the definition. Money and relay. Organization is a form of every human association for the attainment of a common purpose. Organization क्या है? ये एक फॉर्म है every human resources को जो अटेन करना है to achieve some common purpose. One more definition is there. Organization involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate department and the provision of authority, delegation and coordination. क्या है ये? ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये? ये एक एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी जो नेसेसरी है टू अचीव द प्लान एंड गोल्स, और जो एक्टिविटी असाइन की है अपने को वो
अप्रोप्रिएट उस डिपार्टमेंट को देने की, उस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देने की, डेलीगेट करने का और बोलने का कोऑर्डिनेट करो अभी आप. दिस इज नथिंग बट अ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ लेट्स लुक एट द importance of organizing. Organizing is concerned with grouping and assigning the organizational or activity among the departments and workforce. अभी हर एक अलग डिपार्टमेंट रहता है. अपन ने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया. अब उस प्लान के हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है. हर डिपार्टमेंट को क्या क्या काम है वो उनको असाइन करना है. दैट इज नथिंग बट अ ऑर्गेनाइजिंग. The importance of organizing can be stated as follow. Facilitating administration as well as operation. Organizing process lead to identifying and grouping the activity. आज अपने को पता चल गया ऑर्गेनाइज यानी क्या करना है, अपने को क्या काम है, कौन सा काम किसको देना है. दैट इज द ग्रुपिंग द एक्टिविटी. जब अपन वो एक्टिविटी when we assign the group and when we group and assign the activities, the task of administration, whereas processing according to it is a operational activity. मैंने I have given the department their respective work and they are supposed to do the work to achieve the organizational objective. So therefore organizing facilitate administration as well as operation of the organization. मतलब वो प्रॉपर अच्छे से काम करना है और वो अच्छे से पूरा करना भी है. ड्यू टू द इससे क्या होगा, प्रॉपर ग्रुपिंग हो जाएगा ऑफ द टास्क. हाँ, हर किसी को अपने टास्क पे फोकस कर सकता है. हर या फिर अगर पूरा ग्रुप एक्टिविटी है, एनीवे इट्स अ ग्रुप, इट वुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी, डिपार्टमेंट वाइज जा रहा है तो वो ग्रुप उस हिसाब से पूरा काम करेगा. उस हिसाब से दे विल हैव देयर ओन प्लान, दे विल हैव देयर ओन फंक्शंस टू डू. इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और वेस्टेज कम होगा और वो काम रिपीट भी नहीं होगा. ये डिपार्टमेंट का काम ये डिपार्टमेंट ही करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का काम सेल्स ही करेगा. नो वन, देयर वुड बी नो रिपीटेशन ऑफ योर वर्क. ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, बड़े बड़े देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, देर आर स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, राइट. Organization structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. वर्क क्या होता है, यूनिट्स डिपार्टमेंट में हर किसी को डिवाइड हुआ है. दिस डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये हर कोई अपने अपने इसमें स्पेशलाइजेशन है. इस स्पेशलाइजेशन का यूज़ ऑर्गेनाइजेशन करती है. जैसे अपने कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, राइट. साइंस डिपार्टमेंट के टीचर वो साइंस की टिपिकल सब्जेक्ट लेंगे. लाइक केमिस्ट्री के टीचर जो भी है फैकल्टी है, दे विल बी लुकिंग इनटू ओनली केमिस्ट्री बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट, राइट. मैथ्स के टीचर है वो मैथ्स सब्जेक्ट ही देखेगी बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन मैथ्स, शी इज स्पेशलाइज्ड इन मैथ्स, राइट. सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी. नेक्स्ट इज थर्ड इज डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली. जो भी जिसका काम है वो उसको अच्छे से पता चलता है. जैसे सही काम सही आदमी को देना इज नथिंग बट द डिफाइनिंग ऑफ द जॉब. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस. अभी अपने स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से दे विल बी गेटिंग देयर जॉब. स्पेशलाइजेशन वर्क रहते हैं सारे हैं, तो वो कौन सा काम कौन करेगा, क्यों करेगा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है. डिपार्टमेंट वाइज उनको वो काम पे दे आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस हेल्प्स इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली विच क्लियर्स द रोल ऑफ एवरी पर्सन. सो एवरी पर्सन इज वेरी क्लियर इसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इज एब्सोल्युटली क्लियरली अबाउट दैट. नेक्स्ट इज clarifying authority and responsibility. Authority, we have seen authority and responsibility go hand in hand. We have seen that Henry Fayol's 14 principles. In that we have seen authority and responsibility. What we have seen, authority और responsibility दोनों साथ साथ में काम करती हैं. मैं सिर्फ तुमको authority दूँ ये काम करो,
और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूँ तो चलता है क्या? नहीं, ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने आप से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है? एवरी मैनेजर का रोल डिफाइंड है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज देयर पावर सो दैट मिस यूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस, राइट। ये मैनेजर सेल्स का मैनेजर है, वो सेल्स ही देखेगा। वो अपना मैं मैनेजर हूँ बोल के वो हर डिपार्टमेंट में आएगा क्या? हर डिपार्टमेंट में इसमें इंटरफियर कर सकता है क्या वो? नो, ही कांट डू सो। If he is sales manager, he has to concern with only with the sales and his team. He is not supposed to poke his nose in middle of other department, accounts departments, ये इन सब में उसको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अकाउंट डिपार्टमेंट से कुछ हेल्प चाहिए, he can go and ask them, but he can't interfere in that department, right? So that तो मिसयूज का पावर वो नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रॉपर जॉब दे दिया मैनेजर को, उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो मैनेजर भी अच्छे से काम करेगा। अगर वो अच्छे से काम करेगा, अपने आप उसका डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा। अगर डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम करेगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आना है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन मीन्स दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग coordination among different departments of the organization. It creates clear-cut relationship among position and ensures mutual cooperation among the individual. इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल से अपना क्या होता है? फिर अपने आप से अपना म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ता है। अगर आपका टीम है तो टीम के साथ आपका अपने आप से योर रिलेशनशिप विल गो ऑन स्मूथिंग एंड यू मेक श्योर योर टीम वर्क्स प्रॉपरली एंड यू ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द टीम। सेम वे आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है आपको कुछ कुछ चीज़ों के लिए। लाइक आपका आप डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स देख रहा है तो सिर्फ सेल्स देखने का और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करने का, विल इट बी फेयर इनफ? ऐसा है क्या? आपको दूसरे डिपार्टमेंट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। सो you need to have a proper coordination between your subordinates in your department itself and as well as with the other department also. You need to have a proper coordination. Okay, next is helps for effective administration. This function determines different position, departments, activities and the roles are clearly structured. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा? जब हर किसी को एक पोजीशन मिल जाएगी, एक डिपार्टमेंट में काम करने को मिल जाएगा, एक रोल मिल जाएगी, एक एक्टिविटी व्हेन दे विल गेट एंड दे विल गेट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, तभी वो अच्छे से काम करेगा। द utmost care is taken while placing right person at right job with right authority and responsibility. ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसे किसी को भी कोई भी पोजीशन दे देगा क्या? नो, इट वोंट गिव सो. इट विल मेक श्योर, इट विल लुक एट इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट, इट विल लुक एट इट्स सक्सेस रेट. वो सब देखने के बाद ही इट विल गिव द राइट पर्सन इज प्लेस्ड फॉर द राइट जॉब ऑन द राइट पोजिशन एंड ही इज गिवन विद राइट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज इफ समवन फील्स कि बाबा you can take the responsibility, you can take the authority, you are the right person, तो क्या करते हैं? will give you the authority, with that authority will give you responsibility also. It is achieved through division of work and delegation of authority. ये कब होगा? जब मैं सबका काम डिवाइड करूँगी और उनको हाथों हाथ ऑथोरिटी भी दे दूँगी. This also lead to efficient and effective administration. Now 7th is helpful for growth and diversification. The growth of every organization depends upon its smooth and efficient functioning, right? ग्रोथ कब होगा ऑर्गेनाइजेशन का? जब उसके अंदर सारे काम will go on as per the planning, as per the rules and regulation, then only it can work in a proper way. Clearly defined roles and responsibility, coordination among all level of management, personnel and use of appropriate control technique brings efficiency at workplace and organization grows well. इससे क्या होगा? सबको अपने everyone will get their roles and responsibility. Everyone at all the levels of management will work with the proper control, proper technique
and at proper place as well as the, and this will help the organization to grow in a proper way. क्योंकि सबको अपना काम डिफाइंड है, एवरी डिपार्टमेंट विल वर्क टू अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा. क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहा तो हर किसी को अपनी जॉब की पोजीशन पता रहती है, हर किसी को अपनी, everyone knows his duties and responsibilities. So what will happen, everyone can work as per their role, as per their duties and responsibility. So they'll get the clear idea of the job, they'll come to know their power, उनका कितना अथॉरिटी है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस विल गिव देम मेंटल सेटिस्फैक्शन, and this mental satisfaction will create a sense of belonging to the organization. कि like I am also the part of organization. They'll get that feeling ना, वो अपनापन आता है उनको अपने आप से, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उनके हिसाब से उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, how much they are capable of, and what work they wants to do. On that basis the organization has given them their role, they have given them their responsibility, authority, and if they are happy, if the manager, employee, if he or she is happy, then only it will get the sense of security, और यही sense of security will give them the feeling of belongingness to the organization. Next is scope for innovation. Organization function clears the role and activity to be performed. Employee can work by using their new ideas. अब मुझे पता है ये मेरी टीम है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, तो हाउ आई शुड बी कंप्लीटिंग दैट टारगेट, कैसे करूँगी मैं वो टारगेट. आई विल प्रिपेयर माई ओन प्लान, आई विल कम अप विथ मोर न्यू आइडियाज, बेटर आइडियाज. इससे क्या होगा, the manager will get enough scope to develop its talent and flourish his knowledge. मैनेजर और ज़्यादा एफर्ट लेगा ना अपना टीम को आगे करने के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए, टू कम इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट. he'll come up with more innovative ideas. This scope for innovation, जब वो adopt करेंगे new changes in method of work, it will get the organization structure in a better way. जब नए नए टेक्निक आएंगे, इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही होना है. द ऑर्गेनाइजेशन विल कम अप इन अ बेटर वे, इट विल ग्रो एज पर द नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड. सो स्कोप फॉर इनोवेशन. देन लास्ट इज हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दिस फंक्शन प्रोवाइड different job to different employees according to the job satisfaction. Thus to this हर किसी को अपना अपना स्पेशलाइजेशन दे दिया है. अब उस स्पेशलाइजेशन में वो कैसे काम करेगा, he will see that he can use the resources in a better way so that he can achieve the better result in a less time, and he can avoid the wastage. This function provides different job to different employees according to job specification. Due to this, specification of work becomes possible. This right workforce utilize other resources at its optimum level so that desired result are achieved within defined period. Right? Like right workforce, अगर अपने workforce properly divide किया तो क्या होगा, वो workforce वही वो काम करेगा, and it will work in a proper way so that the utilization of the resources is maximum, and will get the maximum result, and the wastage will be minimum. So this was all about the importance of organizing. First one is facilitate administration as well as operation. Second, brings specialization, defines the job properly, clarifies authority and responsibility, establish coordination, helps for effective administration, helpful for growth and diversification, creates sense of security, scope for innovation, helps in optimum utilization of resources. So this was all about importance of organizing. Now next, moving towards the next function, that is staffing. Next, third function is staffing.
we'll look only about the introduction. Importance will be looking in the next lecture. Introduction क्या है staffing का? Staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. Staffing क्या है? ये एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे फॉर्म होता है according to plan and organization structure. It is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraisal, remuneration, development and retaining best workforce. The need for staffing arises since the initial period of organizing. So what is staffing here? Staffing is done by the top level management. Like आपको स्टाफ, क्या आप अकेले सारा काम कर सकते हो क्या? नहीं. We need some workforce. We need proper staff who can carry out the proper organizational work. तो कितना स्टाफ लेने का, कितना क्या करने का, उसके लिए भी प्लान करना पड़ता है और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. इट इज़ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग. प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग यानी क्या कि आपका स्टाफ आपकी कंपनी की ओर कैसे अट्रैक्ट करते हो. लाइक आपका कंपनी कितना रेप्यूटेड है, कितना अच्छा है, कितने लोग आपके कंपनी में काम करने के लिए ईगर है. इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग. रिक्रूटिंग यानी उनको जॉब पे रखना. सिलेक्टिंग, प्रॉपर पर्सन शुड बी सिलेक्टेड. अभी इंटरव्यू के लिए 1000 लोग आएंगे. सी व्हाट हैपेंस इन स्कूल. आजकल बड़ी बड़ी स्कूल्स में लाइक हाचिंग्स, बिशप्स, कैलमाइन, इसमें क्या होता है, एक क्लास के लिए दे नीड ओनली 300 टू एट द मैक्स 400 स्टूडेंट्स. डिवीजन डिपेंड्स अपॉन द डिवीजन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल एंड एवरीथिंग. सपोज एक क्लास में लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए उनको 400 की बच्चे लेने हैं, बट उनके पास एडमिशन फॉर्म कितने आते हैं? डू यू नो? दे कम इन थाउजेंड्स. लाइक 1000, 1500, 2000 बच्चों के आते हैं उनके पास फॉर्म. कैन दे सिलेक्ट एवरीवन? कैन दे सिलेक्ट एवरी चाइल्ड? ले सकते वो 2000, 1000 जितने भी उनके पास फॉर्म आए, उन सब बच्चों को ले सकते हैं वो? नो, दे कांट टेक, राइट? बिकॉज देर इज सम लिमिट टू द कैपेसिटी, राइट? अगर फर्स्ट में ही वो 2000 बच्चे ले लेंगे, वो 2000 बच्चे सेकेंड में जाएंगे, कितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा? विल द स्कूल एबल टू मैनेज सो मच? नो. सो सिलेक्शन इज डन. सिलेक्शन करते हैं वो बच्चों का. सिलेक्शन के लिए वो क्या लेते हैं? दे टेक अ इंटरव्यू. दे टेक अ इंटरव्यू ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड, राइट? सिलेक्टिंग, प्रॉपर सिलेक्ट होता है, प्लेसिंग होता है, राइट? अप्रेजल यानी इफ यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर देर इज अ अप्रेजल. अप्रेजल यानी बढ़ता है आपका पेमेंट, राइट? अब 10 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से मैं आपको एक ही सैलरी दूँ, विल यू बी वर्किंग इन माई कंपनी? नो. एवरी ईयर यू नीड सम अप्रेजल. हर साल आपका सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा सैलरी बढ़े. बढ़े, कितना बढ़ सकता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन में 20% बढ़ता है, कोई 10% बढ़ाता है, कोई 30% बढ़ाता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. दैट इज ऑल अबाउट द अप्राइजल. देन रेम्यूनरेटिंग. रेम्यूनरेटिंग यानी रेम्यूनरेशन देने का उनको. और डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स मीन्स जो अपने पास सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ है, पुराने एम्प्लॉयज़ है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जिनके साथ आप अच्छे से काम कर सकते हो, हु नोज द ऑर्गेनाइजेशन इन एंड आउट वेरी वेल. ऐसा जो स्टाफ रहता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिटेन दैट वर्कफोर्स. क्यों? क्योंकि ये वर्कफोर्स उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं. इट हेल्प्स इन द फ्यूचर फॉर देम. सो nothing but a remunerating best workforce. The need for staffing arises since the initial period of organization. Staffing का ज़रूरत कब रहता है? जब अपन ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, तभी अपने को स्टाफ की ज़रूरत रहती है ना. अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा तो स्टाफ की ज़रूरत है क्या? आज आरम कॉलेज नहीं रहता तो हम लोग रहते क्या? नहीं. आवर मैनेजमेंट स्टार्टेड विद द केम अप विथ न्यू आइडिया, that is starting up a new college, that is in the name of Araham College. Then it started employing teachers, right? Tabhi we became part of it.
जब वो ऑर्गेनाइज किया तब भी सबने ज्वाइन किया. सो ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एन अप्रोप्रिएट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. अभी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो भी है सब किस पे डिपेंड रहता है, वो उसके स्टाफ पे डिपेंड रहता है. एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वर्कफोर्स इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुडे, राइट. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी ऐसा रहता है, कुछ लोगों का बहुत सा नॉलेज रहता है बट दे कांट हैंडल द प्रॉपर डिपार्टमेंट एंड ऑल. तो कुछ फ़ायदा है क्या उस नॉलेज का? नहीं. कुछ लोगों के पास नॉलेज कम रहता है बट दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अदर पीपल वेरी वेल. सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू एम्प्लॉय प्रॉपर स्टाफ. क्योंकि प्रॉपर स्टाफ एम्प्लॉय करने के वी नीड अ प्रॉपर टैलेंट, स्किल, रिटेनिंग देम, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देने का, डेवलपमेंट देने का. सो ऑल दिस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस since the initial period of organizing due to promotion, transfer, business expansion, retirement, resignation, accident, death of employees. Vacancies are created in organization. Vacancy तो every organization में होती है. There are certain reason like किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी ने बिजनेस एक्सपैंड कर लिया, कोई रिटायर हो गया, कोई किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी की डेथ हो गई. सो वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन. तो जब जब वैकेंसी आती है तब तक स्टाफिंग प्लेस ए इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन. राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग क्या है? राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. Now we'll look the definition. First definition is the staffing is the process involved in identifying, assessing, placing, evaluating and directing individuals at work. ये staffing क्या है? ये एक process है जो identify करता है, place करता है, evaluate करता है and direct individual at work, काम में help करता है. Second, by Luther, staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work. Staffing क्या है? ये important function है जिससे हम bring करते हैं, जिससे हम staff लाते हैं, उनको train करते हैं और उनको favorable condition देते हैं so that we can maintain the favorable condition of work and we can maintain those good employees in our company also. So this was the just introduction and definition of staffing. In next lecture we will be looking about the importance of staffing. Thank you.